Hello dear students. Today we want to discuss regarding types of inflorescence. Already we have discussed regarding inflorescence including definition and importance. Now come to next topic called types of inflorescence. Inflorescence को अपन define किए थे cluster of flower. Inflorescence को define किए थे cluster of flower which are developed on specialized axis. Or you call that specialized axis as reproductive axis. एंड यू कॉल दैट रिप्रोडक्टिव एक्सिस एज पेडेंकल और उस रिप्रोडक्टिव एक्सिस को क्या बोले थे पेडेंकल। कोई भी पेडेंकल एक्सिस के ऊपर कोई भी रिप्रोडक्टिव एक्सिस के ऊपर अगर बंच में अगर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं ग्रुप में अगर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो उस समय उसको एक बायोलॉजिकल टर्म अपन बोलेंगे यू कॉल दैट बायोलॉजिकल टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर स्टडीड in your syllabus. Total two types of inflorescence are there, but when you refer competitive exam related to NEET, large number of types are there. रेसिमोस के भी सब टाइप है और साइमोस के भी सब टाइप है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको जो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है वो जनरल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है एंड नेम ऑफ दैट जनरल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज यू कॉल्ड वन इन्फ्लोरेसेंस एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस and you called one inflorescence as cymose inflorescence. How many type of inflorescence are there? Two type of inflorescence are there. One is called racemose and one is called cymose. Now when you observe the name, what do you mean by racemose and what do you mean by cymose? First of all, come to a topic called racemose inflorescence. Take one example. It is best observed in flower like mustard. It is best observed in flower like mustard. Name of one flower is called gulmohar. Few examples are there. Name of one example is called mustard. One example is called gulmohar. One example is called sunflower. When you observe this flower, there is a specialized axis. ये flower की अगर बात की जाए तो इन flower में आपको देखने को मिलेगा एक specialized axis है. You call this specialized axis as peduncle. इस specialized axis को क्या नाम दिया जाएगा? Peduncle. और you may call reproductive axis और क्या बोला जाएगा reproductive axis. Now on this peduncle axis or reproductive axis flowers are arranged. This is the tip of on this tip flowers are not arranged. ये tip के ऊपर flower arranged नहीं है, but on both the sides in a lateral position flowers are arranged. लेकिन इसके दोनों साइड पर laterally flowers are arranged. So here you will observe these are lateral position and on this lateral position flowers are arranged. So this is main axis, this main axis you called peduncle and then flowers are arranged. The lowermost flower they are larger in size. जो lowermost flower है वो larger size के हैं and as the top position comes the size of flower get reduced. जैसे जैसे top position पर जा रहा है वैसे वैसे flower की position क्या होती जा रही है reduce होती जा रही है. So here you will observe these are larger flower. These are all larger flower which are present at the base and at the topmost position the size of flower get reduced so that you call this flower as smaller flower. यहाँ पर आप क्या बोलोगे ये flower को smaller flowers are present at the top while larger flower are present at the base. These are called as larger flower which are present at the base. And this flower has its own main axis और flower की खुद की axis है and you call this axis as pedicel. Flower have their own stalk and name of that stalk of flower is called pedicel और flower के stalk को क्या बोला गया है pedicel. So when you observe this diagram, by observing this diagram, ray diagram of gulmohar, you will observe some characteristic features are there. Here the specialized axis get continued because at the tip of specialized axis flowers are not present, so that racemose inflorescence is also called as indefinite inflorescence. Racemose inflorescence is also called as indefinite inflorescence because at the tip of peduncle axis flowers are not available. There is a bud which divides and redivides so that the growth of peduncle axis get continued. जिससे यहाँ पर peduncle axis की growth क्या मिलेगी आपको continue मिलेगी. इसलिए racemose inflorescence को और एक नाम दिया गया indefinite inflorescence, indeterminate inflorescence because in racemose inflorescence flowers are arranged laterally on floral axis. ये floral axis है, ये reproductive axis है और उस reproductive axis के आजू बाजू फ्लावर जो है अरेंज किए हुए हैं. Now second characteristic feature
When you observe this flower, one more characteristic feature is there. Here, the arrangement of flower is in acropetal succession. Here, the arrangement of flower is called as acropetal succession. Now again, observe a biological word, an important biological word जो MCQ में बहुत बार आता है. What do you mean by acropetal succession? Acropetal succession is that arrangement of flower in which always the matured flower are present at the base and younger flowers are present at the top. यहाँ पर अपन एक larger flower बोले, you may call it as larger flower as matured flower. Matured flower are present always at the base and younger flower they are always present at the top. और younger flower की पोजीशन कहाँ पर है? टॉप पर है. इस प्रकार की अगर अरेंजमेंट कोई प्लांट बॉडी में फ्लावर फॉर्म करता है, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करता है, तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल अरेंजमेंट. नाउ एज फार एज ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज कंसर्न्ड, यहां पर कौन सा फ्लावर पहले ओपन होगा? ऑर्डर ऑफ ओपनिंग की बात की जाए तो विच फ्लावर ओपन फर्स्ट? व्हेन यू ऑब्जर्व दिस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, द ओल्डर फ्लावर which are present at the base, it mature first and then the younger flower will open at last. इसलिए ऑर्डर ऑफ ओपनिंग को, फ्लावर की ओपनिंग जो है, यू कॉल दैट ओपनिंग एज सेंट्रीफ्यूगल. ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला गया है? सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग. यू कॉल दिस ओपनिंग एज सेंट्रीपिटल ओपनिंग. सेंट्रीपिटल ओपनिंग. Centripetal opening is that opening of flower which is based in racemose inflorescence, in which the matured flower which are present at the base it open first, and lastly the younger flower which are present at the top they open later. इस प्रकार की अगर अरेंजमेंट कोई प्लांट बॉडी में पाई जाती है फ्लावर की, तो उस अरेंजमेंट को ओपनिंग, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल ओपनिंग. मींस ऑलवेज द फ्लावर विल ओपन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर. फ्लावर की ओपनिंग जो है वो पेरिफेरी से कहां है? सेंटर की तरफ है. इस प्रकार के अगर अरेंजमेंट कोई प्लांट बॉडी फॉर्म करता है, यू कॉल दैट इन्फ्लोरेसेंस एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. क्या क्या ध्यान रखना है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कोई इंडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस बोला गया है क्योंकि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में टिप पर, पेडिकल एक्सिस के, फ्लोरल एक्सिस के टिप पर यहां पर फ्लावर नहीं है, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. फ्लावर की जो फॉर्मेशन है वो लैटरली है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सिस, एंड यू कॉल दैट स्पेशलाइज्ड एक्सिस एज पेडिकल. और स्पेशलाइज्ड एक्सिस को क्या नाम दिया गया है? पेडिकल नाम दिया गया है. फ्लावर जो फॉर्म हो रहे हैं वो बेसल फ्लावर जो लार्जर है, मैच्योर्ड है, और यंगर फ्लावर जो है वो टॉप पर है. ऐसी अरेंजमेंट जिसमें बेस में यंगर फ्लावर, मैच्योर्ड फ्लावर है, और टॉप पर यंगर फ्लावर है, यू कॉल दैट अरेंजमेंट एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट. उस अरेंजमेंट को क्या बोला गया है? एक्रोपिटल. और फ्लावर की ओपनिंग की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग की बात की जाए, ऑलवेज द लोअर फ्लावर विल ओपन फर्स्ट एंड देन यंगर फ्लावर व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉप दे ओपन लेटर. इस प्रकार ऐसी अरेंजमेंट को बोला गया है सेंट्रीपिटल ओपनिंग. यू कॉल दिस ओपनिंग एज सेंट्रीपिटल ओपनिंग, which is best observed in flower like in plant like mustard flower, gulmohar flower, sunflower flower are the best examples. Now come to next one, cymose inflorescence. Cymose inflorescence is that inflorescence. Cymose inflorescence एक ऐसा inflorescence, यहाँ पर आपने बोले थे indefinite inflorescence, but in cymose inflorescence you call it definite inflorescence. लेकिन cymose inflorescence को आप क्या बोलोगे? It is called as definite inflorescence because when you observe the peduncle axis, suppose this is peduncle axis, specialized axis, at the tip of peduncle axis there is matured flower. ये peduncle axis के टिप पर आपको जो फ्लावर मिलेगा वो matured flower मिलेगा. So here you will observe this is a older flower. You call it older flower. You call it matured flower. And this matured flower is present at the tip. Which tip? It is present at the tip of peduncle. Specialized axis के टिप पर matured flower है. Specialized axis के टिप पर matured flower है. जैसे यहाँ पर growth of flower gets stunted. यहाँ पर फ्लावर की ग्रोथ क्या होगी? स्टंटेड हो गई, रुक गई. फ्लावर पेडिकल एक्सिस और आगे ग्रो नहीं होगा क्योंकि टिप पर कौन सा फ्लावर अवेलेबल हो गया है? ओल्डर फ्लावर अवेलेबल हो गया है, मैच्योर्ड फ्लावर अवेलेबल हो गया है. दैट्स व्हाई फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड टर्मिनली. यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? टर्मिनल पोजीशन पर हुआ है. ठीक है. मेन एक्सिस के टिप पर यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हो गया है. इसलिए ऐसी अरेंजमेंट जिसमें फ्लावर की पोजीशन जो है टिप पर है, मैच्योर्ड फ्लावर टिप पर है, और यंगर फ्लावर जो है दे आर प्रेजेंट
at the base. Here you will observe these are younger flower which are present at the base. These are immature flower. These immature flower are present at the base. Young flower which are always present at the base, and these older flower are always present at the top. ओल्डर फ्लावर की पोजीशन टॉप पर है और यंगर फ्लावर की पोजीशन बेस पर है। इस प्रकार के अगर अरेंजमेंट कोई प्लांट प्रोड्यूस करता है फ्लावर की, तो ऐसे समय पर उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या नाम दिया जाएगा? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। दैट्स व्हाई साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑलवेज कॉल्ड एज डेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यू मे कॉल इट एज डिटरमिनेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक और बायोलॉजिकल वर्ड यहां यूज कर सकते हो आप, डिटरमिनेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। अब फ्लावर, मैच्योर फ्लावर टॉप पर है, यंगर फ्लावर बेस पर है, इसलिए हियर यू कॉल दिस अरेंजमेंट एज, यहां पर एक्रोपिटल बोले थे अपन ने, यहां पर अपन एक्रोपिटल बोले थे। एक्रोपिटल में क्या हुआ था? ओल्डर फ्लावर बेस में था, यंगर फ्लावर टॉप में था। जबकि यहां पर पोजीशन कैसी हो गई है? टोटली चेंज हो गई है। ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर आर एट द बेस, सो दैट इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द इन्फ्लोरेसेंस इज ऑलवेज कॉल्ड एज बेसिपिटल। यहां पर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल अरेंजमेंट। The arrangement is always described as basipital arrangement. Is it clear? यहाँ पर अपने नाम दिए थे एक्रोपिटल अरेंजमेंट और यहाँ नाम दे रहे हैं अपन बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो मैं दोनों में फर्क क्या है? टू बायोलॉजिकल वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? एक्रोपिटल एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ओल्डर फ्लावर बेस में है, यंगर फ्लावर टॉप पर है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया एक्रोपिटल। जबकि बेसिपिटल अरेंजमेंट एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ओल्डर फ्लावर टॉप पर है और यंगर फ्लावर बेस में है। पोजीशन में फर्क आ गया। That's why here the arrangement is called as basipital arrangement. Means younger flower at the base, and older flower are present at the top or are present at the apex. That arrangement is called as basipital. Now come to order of opening. अब यहाँ देखिए order of opening क्या है? Which flower will open first? Order of opening. Come to next topic called as order of opening. Which flower will open first? When you observe the cymose inflorescence, by observing the mature flower and immature flower, okay, by observing this diagram, naturally which flower will open first? The top flower will open first, and then the lateral flower will open. इसका मतलब फ्लावर की ओपनिंग जो है टॉप से बेस की तरफ होगी। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम अपेक्स टू बेस, टॉप टू बेस, so that here the arrangement is called as centrifugal arrangement. यहाँ पर अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। Here you call this arrangement as centrifugal arrangement. यहाँ पर अरेंजमेंट को बोला गया था सेंट्रीपिटल। क्यों बोला गया था सेंट्रीपिटल? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर की ओपनिंग कहां से हो रही है? बेसल फ्लावर पहले ओपन हो रहा है और यंगर फ्लावर जो है टॉप पर है वो बाद में ओपन हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट थी और यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट जो है वो टॉप से बेस की तरफ है। So that here the arrangement is called as, the opening of flower is always called as centrifugal and is best observed in flower like jasmine. और ये अरेंजमेंट जो है आपको बेस्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा some flower में। Name of one flower is called jasmine, in which cymose inflorescence is there. Name of one flower is called clerodendron, जिसको मेहंदी का झाड़ बोलते हैं। Name of one example is called जासवंत, ये also which is called hibiscus, जिसको हिबिस्कस बोला गया है, उसमें भी आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। हिबिस्कस जिसको चाइना रोज बोला गया है। ठीक है। वन इज जास्मीन एंड वन मोर एग्जांपल इज देयर कॉल्ड एज कैलोट्रोपिस, और एक और एग्जांपल है कॉल्ड एज कैलोट्रोपिस। हियर आल्सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज लाइक साइमोस। यहां पर भी अरेंजमेंट कैसी मिलेगी आपको? साइमोस की मिलेगी। So these are the few basic difference in inflorescence. Particularly, name of one topic is racemose and name of one topic is cymose. Is it clear? यहाँ पर indefinite बोला गया था क्योंकि पेडिकल एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस बोला गया है क्योंकि पेडिकल एक्सिस की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है। ठीक है। यहाँ पर फ्लावर जो है मैच्योर फ्लावर बेस में है, यंगर फ्लावर टॉप पर है, इसलिए ऐसी अरेंजमेंट को बोला गया था सेंट्रीपिटल। जबकि यहाँ पर टॉप पर ओल्डर फ्लावर है, बेस पे यंगर फ्लावर है, इसलिए अरेंजमेंट को बोला गया
बेसिपिटल, हियर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेसिपिटल। यहाँ पर फ्लावर की ओपनिंग जो है वो बेस से टॉप की तरफ हो रही है, बेस से अपेक्स की तरफ फ्लावर ओपन हो रहा है, इसलिए अरेंजमेंट को बोला गया था, अरेंजमेंट को ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोला गया था सेंट्रीपिटल। क्या बोला गया था? सेंट्रीपिटल। बट हियर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम टॉप अपेक्स टू बेस, इसलिए यहाँ पर ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोला गया सेंट्रीफ्यूगल। तो ये जो चार बायोलॉजिकल वर्ड है, इस चार बायोलॉजिकल वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है? तो ध्यान में रखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में कुछ ही लिमिटेड बायोलॉजिकल टर्म्स है। वन इज इंडेफिनिट, हियर डेफिनिट, देन एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल, हियर बेसिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, एंड इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स है मस्टर्ड, गुलमोहर एंड सनफ्लावर आर द बेस्ट एग्जांपल, एंड हियर एग्जांपल्स आर जैस्मीन, क्लेरोडेंड्रॉन, हिबिस्कस एंड कैलोट्रोपिस आर द बेस्ट एग्जांपल, so that this topic we get complete. Now our next topic is study of flower. अपन next topic क्या डिस्कस करेंगे? Regarding study of flower.